Now, and shifting our focus to the latest political face-off due to a controversial statement by the Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot, who has raked a fresh controversy by linking murders to capital punishment for rapists and stricter rape laws. Gehlot said that due to capital punishment for culprits after the Nirbhaya case, the incidents of murder after rape have increased. He also added that rapists have realized that the victim will become a witness against them and therefore they are killed post the heinous crime is committed. This remark has sparked a nationwide outrage, with Nirbhaya's mother also hitting out at the Chief Minister for trivializing a heinous crime and advocating against death penalty. She also demanded the resignation of the Chief Minister of Rajasthan. ये तमाम जो माहौल बन रहा है, रेप हो रहे हैं बच्चों के साथ में, और बच्चों में जब से कर दिया है कि भाई उसको फांसी सजा मिलेगी, निर्भया के बाद में जो कर दिया है कि आपको फांसी सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हत्याएं बहुत ज़्यादा होने लग गई बच्चियों की। रेप करने वाला देखता है कि ये तो गवाह बन जाएगी कल मेरे खिलाफ में, तो वो रेप भी करते हैं और हत्या भी कर देते हैं बच्चियों की। ये बहुत बड़ी चलन पूरे मुल्क में मैं देख रहा हूँ, जो रिपोर्ट आ रही है बहुत खतरनाक ट्रेंड है। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब ने जो बयान दिया है, ये बहुत शर्मसार बयान है और बहुत दुख पहुंचा है इससे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वो पूरे देश के महिलाओं से माफी मांगे और उनकी जो आला कमान है उनको इस्तीफा दे, उनको इनसे इस्तीफा ले। Well, DCW Chief Swati Maliwal said that Gehlot has mocked Nirbhaya case and strict action should be taken against the Chief Minister himself. Listen. I think Mr. Ashok Gehlot should stop speaking the language of rapists. It's very unfortunate what he has stated, and I think because of what his statements, the sentiments of all rape survivors across the country are hurt. He has actually made fun of Nirbhaya, which is completely uncalled for. He's the Chief Minister of Rajasthan. His work is to ensure that all the laws of the land are implemented properly. Now, instead of implementing this law properly, the Chief Minister of Rajasthan comes out and makes bizarre statements which are actually anti-women. I think that it is his role to make sure that there are no rapes in Rajasthan instead of coming out and making stupid and bizarre statements. Well, the BJP has also hit out at the Chief Minister. The BJP says Congress is again backing Balatkari Bachao Andolan. The BJP has also questioned the silence of Priyanka Gandhi Vadra on the issue. के मुख्यमंत्री का ये बयान उनके महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है और यही कारण है कि राजस्थान आज महिला अपराध में नंबर 1 हो चुका है। मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहूँगी कि कानून हमेशा प्रोग्रेसिव सोच के साथ बनाए जाते हैं। उनकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी शासन और प्रशासन होता है, जिसमें आप पूरी तौर से फेल हैं और आप राजस्थान के गृह मंत्री होते हुए निरंतर अपराधों में वृद्धि, दलित, महिला, एसटी के अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। आप अपनी विफलता छुपाने के लिए इस तरह के बयान देकर बच नहीं सकते हैं। However, some Congress leaders remain defiant and back Gehlot's statement. Congress has even, in fact, refused to condemn the statement by Ashok Gehlot. अशोक गहलोत के बयान पर विचार करना चाहिए। सीनियर लीडर है, कितनी बार मुख्यमंत्री रहे। रेप की सजा मौत है और कत्ल की सजा भी मौत है। एक आदमी को आप 2 मौतें नहीं दे सकते। जो आदमी रेप कर रहा है वो ये सोचता है कि अगर हत्या कर दी गई तो शायद उसकी जान बच जाएगी, चूंकि सजा तो एक ही मिलेगी। यही मकसद है अशोक गहलोत का। Well, even after the backlash, the Chief Minister of Rajasthan is defiant, says he stands by his remark. In fact, Ashok Gehlot asserts that it's the BJP which is misconstruing his statement and BJP is peddling fake news. आम जनता समझ रही है, ये नहीं समझ रहे हैं। इतने फर्क है। जनता समझ रही है कि एक ऐसा फैसला हुआ जिसमें फांसी की सजा हो गई रेप करने वाले को। बहुत कड़ा फैसला था, सोच समझ के किया, कानून बनाया उसके लिए, वही रेप होना बंद हो जाए कम से कम, और भय पैदा हो कि जो रेप होगा किसी बच्ची का
उसको फांसी सजा हो जाएगी, अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया, परंतु जो रेपिस्ट है तो उनको मालूम है कि ये बच्ची कल गवाह देगी मेरे खिलाफ में, तो मुझे फांसी की सजा हो जाएगी। फांसी से बचने के लिए वो उसका मर्डर कर देता है। मैं तो खाली हकीकत बताई जो देश में हो रहा है, उसको लेके बीजेपी वाले जो करते हैं नई बात नहीं हमारे लिए। All right, let's open this up. We're joined by Asha Devi, Nirbhaya's mother. We have Shahzad Poonawala, national spokesperson of the BJP, and Dushyant Nagar, political analyst. Good evening to all of you. Asha जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। स्टेटमेंट पहले का भी और उसके बाद जो अशोक गहलोत कह रहे हैं वो भी हमने सुनाया। कहीं से भी उनको कोई रिग्रेट नहीं है जो उन्होंने कहा उस बात पर। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले गलत बयानी कर रहे हैं मेरे स्टेटमेंट के बारे में। जी, आज जो वीडियो सामने आ रही है जिसमें वो बोल रहे हैं निर्भया के बजाय अभया कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो तो सारा इंजाम निर्भया कांड पे और कानून पे डाल रहे हैं कि नहीं, निर्भया का केस हुआ, उनको फांसी हुई तो बच्चियों के साथ क्राइम बढ़ गया और उनको मर्डर हो गया। तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उस निर्भया के घटना से पहले किसी बच्ची के साथ रेप बलात्कार नहीं हुआ, किसी बच्ची के साथ हत्या नहीं हुई? तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने बयान दिया है ये बहुत शर्मनाक है, खासकर बच्चियों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस पद पे वो बैठे हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वहां पे उस पद पे बैठ करके ऐसा बयान दे रहे हैं, तो ये महिला और बच्चियों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं ये बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो बलात्कारियों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से रेप कोई घटना नहीं है, रेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेप करो, बलात्कार करो और उनको छोड़ दो। लेकिन उनसे पूछा जाए कि जिस घर में होता है, जिसकी बच्ची इस दुनिया से चली जाती है, उसका क्या हाल होता है? दुष्यंत नागर जी, इसका कोई तो जवाब है क्या? कि जिस तरह से उन्होंने आशा देवी कह रही है ऐसा लग रहा है कि बलात्कारियों के तरफ से ये बयान अशोक गहलोत दे रहे हैं। और क्यों इतनी हमदर्दी? अगर सख्त कानून है तो कुछ सोच के ही सख्त कानून बनाए गए। देखिए बिल्कुल, और मैं आशा जी की भावनाओं से और जो उनको आहत पहुंची है उससे मैं स्वयं को जोड़ता हूं। इनको जो बहन जी को दर्द हुआ है उस दर्द को हम बिल्कुल सम्मान के साथ उसका समर्थन करते हैं। और देखिए, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी होगी, उन्होंने क्या कहा है, वो सुधार चाहते हैं। सुधार कई तरीके के हो सकते हैं, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। रेप केसेस लंबे समय तक आपने देखा है लटके रहते हैं, सुनवाई नहीं होती, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनते। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का आपने देखा किस तरह से उसने बच्ची का पहले शोषण किया, फिर उसके परिजनों को मार दिया। आज आप देखिए, वायरल है कल से, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता किस प्रकार से एक बहन को पॉलिटिसाइज करने किस तरीके से एक बहन को धमका रहा है, किस तरीके से उनको टॉर्चर करने का प्रयास कर रहा है। तो रेप ही है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन देखिए, हमें कैपिटल पनिशमेंट के साथ साथ में ये भी सोचना होगा कि इन केसेस का निस्तारण न्यायालय में कितना जल्दी से हो, जिससे कि आरोपी को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा मिल सके। बहुत सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये स्टेज 2 है। इन सब के लिए देखिए दुष्यंत नागर जी, ये स्टेज 2 है। सबसे पहले कानून की जिम्मेदारी राज्य की है। सभी दलों को मिलकर बैठकर इसके बारे में नहीं दुष्यंत नागर जी, एक मिनट चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी। एक मिनट, वही मैं कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए। आपने शुरुआती राजनीति से की, बीजेपी के इंसिडेंट्स के बारे में आपने जिक्र करके शुरुआती राजनीति से की दुष्यंत जी। फिर से नहीं, मेरी बात सुनिए। स्टेज 2 की बात है, जब मामला कोर्ट में पहुंचता है, कितना लंबित होता है, ये स्टेज 2 है। स्टेज 1 होता है लॉ एंड ऑर्डर। बोला है वो ठीक बोला है, लॉ एंड ऑर्डर होता है स्टेज 1। आशा देवी से इतना पूछ रही है कि क्या उन्होंने सही कहा है? अगर राजस्थान जैसे राज्य में जहां महिलाओं के खिलाफ क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, वहां मुख्यमंत्री की ऐसी सोच होगी तो किस तरह का संदेश जाएगा? जी बिल्कुल सही बात आपने कही है। बिल्कुल आशा जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। आपको ध्यान, बिल्कुल हम तो देखिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि जब निर्भया की केस चल रही थी तो एक रेपिस्ट यही बोल रहा था कि अगर हम लोगों को फांसी होगी तो बच्चियों के साथ रेप बलात्कार बढ़ेंगे। बहुत गलत है जी, भाषा मंत्री साहब बोल रहे हैं, तो हम या हमारे जैसे परिवार क्या सोचेगा
कि कहीं ना कहीं आप निर्भया कांड को ही दोषी ठहरा दिए कि उसकी घटना हुई, उसके बाद उसकी सजा हुई, उसके बाद रेप बढ़ गए। अपना गुनाह छिपाने के लिए आप बच्चियों को मुख्यमंत्री महोदय, आप सुरक्षित नहीं कर पाए। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य की, देश की बेटियों के बारे में चिंता व्यक्त की है। वो दुखी हैं, ठीक है, उनकी जो हत्याएं हो रही है, हमें उस दर्द को भी समझना है। ठीक है शहजाद हमारे मुख्यमंत्री तो दुख के मारे ये बयान दे रहे हैं, आप लोग इसको गलत दिशा दे रहे हैं। का 40 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है, उनकी बहन, बेटी, बुआ सब कुछ भरा पूरा जवाब ले लेते हैं। लेकिन दुष्यंत नागर जी, सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, उस राज्य की वो मुखिया है जहां पर क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, तो जमीनी हकीकत कुछ और है। सुनने कहने के लिए बातें बहुत हो रही हैं। शहजाद पूनावाला, पहले तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे साथ आशा देवी जी एक और पैनल में है और मैं चरण स्पर्श करके अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। और आशा जी, हालांकि वो मेरी पार्टी से नहीं है, पर मैंने पिछले शो में भी आपसे माफ़ी मांगी थी और पूरे राजनीतिक तबके की ओर से। हालांकि गहलोत जी तो कह रहे कि मेरा बयान सही है, राशिद अलवी कह रहे कि नहीं बहुत सही बोला है, और कह रहे आशा जी को समझ में नहीं आया बयान, जनता को नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि राजनीतिक पटल पर एक व्यक्ति जो मैं बेवकूफ हूँ ना, मैं बेवकूफ हूँ, मैंने अपनी बेटी खोई है, मुझे बहुत दुख की बात है और इसीलिए मैं माफी मांग लेता हूँ। मुझे लगता है बेवकूफ हूँ, मुझे समझ नहीं आता। आज बेटियों को साथ जो हो रहा है, जो माँ बाप धक्के खाते हैं, जो पुलिस थाने से लेकर नेता लोग, मंत्री लोगों के तलवे चाटते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। अब वो 40 साल नेतागिरी किए हैं, इसलिए उनका सोच बदल गया है, ऐसे सोच रखते हैं महिलाओं के लिए। तो देखिए, ये दर्द है, ये दुख है। और स्वाति जी, अभी हम लोग पूर्व संध्या पे है एक तरीके से राखी के, जिसमें कि हम बेटियों के साथ, बहनों के साथ खड़े रहते हैं, ये बलात्कारियों के साथ खड़े रहते हैं। ये बलात्कारी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। इस मौके पर निर्भया जी का भी ये अपमान करने वाला बयान है। अशोक गहलोत जी का पहला एक लौता बयान नहीं है। उनके मंत्री ने एक बार कहा था राजस्थान में रेप इसलिए होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। अशोक गहलोत ने कहा था कि ज्यादातर मामले बलात्कार के फेक होते हैं। उन्होंने, एक विधायक ने कहा था कि बलात्कार होता रहे तो एंजॉय कर लेना चाहिए अगर रोका ना जा सके। और ये बयान के पीछे आशा देवी जी, मैं आपको बताऊं असली मर्ज क्या है। 2 राजस्थान के लोग हैं, मंत्री है, एक MLA है, उनके बेटे पे रेप का चार्ज लगा है, छोटी सी बच्चियों का, तो उनको बचाने के लिए गहलोत जी शायद ये बयान दे रहे। तो मैं आशा जी, मैं तो आपसे एक सेकंड, बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। किस तरीके की दर्जे की एक बार बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, एक बार बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। दुष्यंत जी, एक मिनट, आपके कौन बात कंप्लीट करने दीजिए। जिनका वीडियो वायरल हो रहा है भैया, बात कर सकता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या किसी दूसरे? ठीक है दुष्यंत जी, एक बार सुन लीजिए पूरी बात, फिर मैं काउंटर लेती हूँ। कल गृह मंत्री ने बोला स्वाति जी, कृपया करके इस स्टूडियो में इस प्रकार के गेस्टों को बुलाकर आशा जी के सामने इस प्रकार के मैं ऐसे घोषित प्रवक्ताओं के साथ एक सेकंड, लोगों को बात समझ नहीं आएगी, थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, इस तरह से सेंसिटिव मुद्दे पर इस तरह से बहस। मैं तो केवल अब मैं आऊंगी आपके पास, काउंटर के लिए आपको मौका दूंगी, प्लीज। आशा जी हमारे साथ पैनल में बैठी है और तू मैं उनके सामने नहीं होना चाहिए। ये देश को इतना सम्मान देना चाहिए। आपको झूठ बोलने का पूरा राइट है। देखिए, गहलोत जी को भी बचा है, बलात्कारियों को भी बचा है, सबको बचा है, पर मुझे अपनी बात, स्वाति जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। समय जाया हो रहा है, मैं आपके पास काउंटर के लिए मैं आ नहीं पाऊंगी। स्वाति एक बार यही करते हैं, मैं काउंटर के लिए आ नहीं पाऊंगी। दुष्यंत जी, इनको बात पूरी करने दीजिए, अदरवाइज मैं काउंटर नहीं ले पाऊंगी आपसे। ये मानसिकता की वजह से आज राजस्थान नंबर 1 है बलात्कार में। इसीलिए जो 10 सबसे अनसेफ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से 8 डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान है, 8 राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं आशा जी से इतना कहना चाहता हूं कि आशा जी, ये तो अच्छी बात है कि उनकी सरकार अभी नहीं है, वरना तो ये बलात्कारियों को सुई धागे की मशीन देकर उनको लगवा देते काम पर। ये इस प्रकार की मानसिकता असहनीय है। और आशा जी, मैं आपसे माफी मांगता हूं अशोक गहलोत जी की ओर से, राजनीतिक तबके की ओर से, कि आपको ये सुनना पड़ा। भी माफी मांग लीजिए लगे। नहीं दुष्यंत जी, देखिए, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई शख्स हो, किसी क्लास, किसी कास्ट, कहीं से भी आता हो, अगर हमको बात यहाँ जो हो रही है गंभीरता की हो रही है, क्राइम के गंभीरता की बात हो रही है। इतने हल्के में कह देना कि क्योंकि बच्चियां कल के दिन विटनेस बन जाएगी इसलिए उनका मर्डर भी हो रहा है, बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। तो एज अ चीफ मिनिस्टर, as a home minister also of the state, law and order is under him. He's not been able to improve the situation in his own state. दुष्यंत नागर, स्मृति जी भी चुप है। स्मृति ईरानी जी का भी नोएडा में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, एक भारतीय जनता पार्टी का लीडर। मुझे लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल ब्लेम गेम में ये मामला उलझाने का एक इंटेंशन है। There is no other defense. So that's why the political blame game. That's unfortunate. The political blame game is unfortunate, Dushyanth Nagar. I'm completely out of time.
आशा देवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त आपने हमको दिया। शहजाद पूनावाला, दुष्यंत नागर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।